students, let's continue with chapter number 3, linear regression. This is exercise number 3.3, sum number 1. Two equations are given to us. We are supposed to find the value of R, that is coefficient of correlation, and we are also supposed to find the value of X bar and Y bar. Now, the first thing, see, there are two parts of this question, very important, because this type of questions are normally asked in the exam. Exercise 3.2 also was very important. 3.3 ka, when there are two equations given and we are supposed to find the value of R and we are supposed to find the value of mean value of X and Y. So the first part, let us try to complete with the first part. First part का जो sum है वो कोई भी 8th स्टैंडर्ड का या 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है. फर्स्ट पार्ट. अब तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एक्स और वाई. फिर से एक बार, हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. बिकॉज इफ देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस and when those two lines are intersecting, their intersection will be the mean values of x and y. अरे समझ में आ रहा है? मतलब क्या करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली. कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली? सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन 4y is equal to 9x plus 15. Take 9x this side, minus 9x plus 4y is equal to 15. इक्वेशन नंबर 1. कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ. 25x प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्षेत्र डैश 2. देयर आर टू इक्वेशंस. दो इक्वेशन दिख गए. अभी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना तो स्कूल लेवल में किया था, बट इट्स ओके. जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर से एक बार देखो, when you solve a simultaneous equation, या तो x को पकड़ो या तो y को पकड़ो. अब तुम लोग बोलेंगे सर हमको x अच्छा लगता है, हम x पकड़े क्या? ऐसा नहीं पकड़ सकते हैं. वो नंबर सेम होने चाहिए, वो नंबर सेम होने चाहिए. 4 और 4 ये सेम है ना, तो you can select y. So I am selecting y because these numbers are same. तुम लोग बोलेंगे सर अगर नंबर्स अलग रहेंगे तो सेम करना पड़ेगा. करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे 4 and 4 is same, signs are different, so we will do adding 1 and 2. This will get cancelled. 25 minus 9 is 16. 15 plus 17 is 32. Therefore, x is equal to 32 upon 16 1 is 16 2 is x is equal to 2 is the answer. X is equal to 2. Putting x is equal to 2 in equation number, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में डाल देते हैं. माइनस 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इंटू x का वैल्यू इज 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 15. 9 2 is 18 प्लस 4y is 15. therefore 4y is equal to 15 4y is equal to 15 plus 18 is 33. Therefore, y is equal to 33 upon 4. Okay, so this is the answer. कुछ गलती किया क्या एक बार चेक कर लेते हैं. 25 माइनस बराबर 25 16 परफेक्ट 10 32 2 माइनस 9 18 माइनस 18 प्लस 18 15 18 33 upon 4. Therefore, the mean values of x and y are 2 and 33 upon 4. That is x bar is 2 and y bar is 33 upon 4. Hope this is clear. The second part of this question is finding the value of R, that is coefficient of correlation. The formula of R, that is coefficient of correlation, is R is equal to plus minus root of byx into bxy plus minus root of byx into bxy. मतलब ये दो इक्वेशन में से I need to find out the value of byx, I need to find out the value of bxy, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेके you get the answer. Is this clear? Now
how to proceed. See, there are two equations given. There are two regression equations. One regression equation is x on y, the other is y on x. दो इक्वेशन रहते हैं, एक x on y रहता है, एक y on x रहता है। एक इक्वेशन में हमें y को एक साइड रखना पड़ता है, बाकी सब टर्म्स को इधर रखना पड़ता है, दैट इक्वेशन इज y on x। एक इक्वेशन में x को एक साइड रखना पड़ता है, बाकी सब टर्म्स को वो साइड रखना पड़ता है, वो इक्वेशन है x on y, बराबर है। सो वी आर गिवन two equations, but we don't know which is regression equation x on y and which is regression equation y on x। ये तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि मैं y on x हूं, कि मैं x on y हूं। हाँ, वो अलग बात है कि पहला इक्वेशन y on x लग रहा है क्योंकि y एक साइड पे है, लग रहा है, पता नहीं है, गारंटी नहीं है कि वो y on x है, गारंटी नहीं है कि ये x on y है, बट वी विल ट्राई। और ट्राई तो एक ही बार करना है ना। अगर मैंने ये ट्राई किया कि ये y on x है और ये x on y है, अगर नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उल्टा ही होगा, ये y on x रहेगा और ये x on y रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो व्हाट टू डू इज यू हैव टू सपोज, अज्यूम, लेट फर्स्ट सेकेंड, लेट इक्वेशन 1 बी y on x। इक्वेशन 1 को क्या लिया? y on x लिया। क्या लिया? y on x लिया। क्या लिया? y on x लिया। y on x लिया मतलब क्या किया? मतलब y को एक साइड पे रखा, बाकी सब टर्म्स को वो साइड पे रखा। ऑलरेडी ऐसा ही है, बट फिर भी जरा बराबर से देखो। 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15। y को एक साइड पे, बाकी सब टर्म्स को वो साइड पे, मतलब 4 ऊंचू तो उधर नीचे। Therefore, y is equal to 9 upon 4x plus 15 upon 4। 4 ऊंचू तो इधर नीचे, दोनों जगह पे नीचे जाएगा, वो दोनों के नीचे जाएगा। एक के नीचे आएगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, अरे बोले इधर आ गया, मेरे इधर क्यों नहीं आया, तो भाई दोनों के इधर जाएगा, बराबर है ना। So I got this regression equation y on x। You got regression equation y on x, so the coefficient of x, x के बाजू वाला जो कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट है ना, x के बाजू वाला जो कोएफिशिएंट है ना, ये वाला, x के बाजू वाला जो कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट है ना, x के बाजू वाला कोएफिशिएंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज byx। देयरफॉर byx इज इक्वल टू 9/4। क्लियर है? फिर से एक बार, y को एक साइड पे लो, बाकी सब टर्म्स को उधर ले लो, x के बाजू में जो नंबर दिखा ना वो byx, क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा है? y on x, तो इधर क्या मिलेगा? byx। अब रिग्रेशन इक्वेशन x on y, लेट इक्वेशन 2 बी x on y, ओके। देयरफॉर 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17। x को एक साइड पे, बाकी सब टर्म्स को वो साइड पे, तो we will get x is equal to 4/25y plus 17/25। y के बाजू वाला नंबर is what? bxy is 4/25। I got bxy as 4/25। I got byx as 9/4। Now I am substituting in the formula। byx 9/4, bxy 4/25, 4 gets cancelled, plus minus 9/25 plus minus 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, आंसर 0.6, 5 6 30, 0.6 बराबर। बट प्लस के माइनस क्वेश्चन में ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, सो आंसर विल बी प्लस 0.6। आंसर विल बी प्लस 0.6। दोनों माइनस रहेंगे तो आंसर माइनस, दोनों प्लस रहेंगे तो आंसर प्लस। अलग अलग साइन नहीं हो सकता है, सोचो भी मत। दोनों प्लस है तो आंसर विल बी प्लस 0.6। अब तुम लोग बोलेंगे सर क्या ये आंसर करेक्ट है? यस करेक्ट है। तुम लोग बोलेंगे सर आपको ऐसा मालूम पड़ा, आपने आंसर देख लिया था क्या पहले? मैंने आंसर हाँ देखा था मैंने पहले, लेकिन अगर आंसर -1 और 1 के बीच में आता है, आर का वैल्यू,
-1 और 1 के बीच में आता है, आंसर इज करेक्ट। अगर इधर आंसर आता 1.6 तो ये आंसर गलत होता। तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ना 1, ये x ऑन y होता और ये y ऑन x होता, उल्टा होता। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग रहता। बट यहाँ पे अजम्पशन हमारा करेक्ट है। अजम्पशन करेक्ट है तो क्या किया मैंने, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट निकाल के देखा 0.6 आ गया। चाहिए तो पहले रफली निकाल के देखो क्या 1 और -1 के बीच में आता है क्या। अगर बीच में आ गया 1 और -1 के बीच में तो आंसर करेक्ट है। अगर नहीं आया तो फिर दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन, जो y ऑन x लिया ना वो x ऑन y रहेगा और ये y ऑन x रहेगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Now, as we have seen question number 1, question number 2 is also same as question number 1. But here, there are 3 parts. The first part is finding the mean value of x and y. The second part is finding the value of r. And the third part is finding the value of standard deviation of y when variance of x is given. Variance of x is given and standard deviation of y find करना है। बाद में देखते हैं, पहले पहला पार्ट खत्म करते हैं। पहला पार्ट जब भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे तो मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y मतलब सॉल्विंग द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। चलो आई विल राइट 8x minus 10y is equal to -66 plus 66, it goes there, becomes minus 40x minus 18y is equal to 214, equation number 2. Can these equations be solved? No, because x select करो या तो y select करो। x में भी नंबर अलग अलग है, y में भी नंबर अलग अलग है। You cannot solve them. You have to make x टर्म सेम और y टर्म सेम। कौन सा अच्छा पड़ेगा, x के y? x अच्छा पड़ेगा। कैसे? क्योंकि if I multiply 8 by 5 it will become 40, तो 40 सेम हो जाएगा। So I will write multiplying equation number 1 by 5। चलो 5 8s are 40, 5 10s are 50, 5 into 66 is 330 minus 330 dash 3। इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखते हैं। सेम हो गया, देखो अभी हो गया ना सेम। सेम। नाउ साइन प्लस प्लस है ना, तो व्हेन द साइंस आर सेम यू विल राइट सब्सट्रैक्ट 2 from 3 minus plus minus, this will get cancelled। Now 50 minus 18 is minus 32y and this will be 5 4 4 minus 544, therefore y is equal to minus 544 divided by minus 32। minus minus cancel, 2 16s are 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 2s are 4, बराबर ना। 2 8s are 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 4s are 2 6s are 12, 2 8s are 16, 4 1s are 4 17s are, y is equal to 17, y is equal to 17, putting y is equal to 17 in equation number 1, equation number 1, 8x minus 10 into Shatra is equal to minus 66, 8x minus 170 is equal to minus 66, 8x is equal to minus 66 plus 170, 8x is equal to 104, therefore x is equal to 104 divided by 8, x is equal to 13. So I got the mean value of x and mean value of y. Any probs? No probs. You have to write that two regression equations intersect and the value is called as the mean values of x and y. So mean value of x and y are 13 and 17. Okay. The second part of the question is finding the value of r. So there are two equations. We have to assume. I'll write let, this is first and this is second. Let equation 1 be y on x. So first equation is 8x minus 10y plus 66 is equal to 0.
y on x ना, तो take y on one side, take all the terms on that side. So minus 10y is equal to minus 8x minus 66. Therefore y is equal to minus 8 upon minus 10 minus 66 upon minus 10. Okay, therefore y is equal to 8 upon 10 x minus plus 66 upon 10. Okay, so x के बाजू वाला टर्म क्या है 8 upon 10. x के बाजू वाला टर्म क्या है 8 upon 10. So byx is equal to 8 upon 10. Easy. Then let equation 2 be x on y. तो इक्वेशन 2 x on y है, तो x के टर्म एक साइड, बाकी सब वो साइड. 40x is equal to 18y plus 214. Therefore x is equal to 18 upon 40y plus 214 upon 40. तो y के बाजू वाला टर्म is bxy is 18 upon 40. Okay, I got bxy and byx बराबर. चलो देखते हैं कि आंसर करेक्ट आता है क्या. r is equal to plus minus root of byx into bxy plus minus root of 8 upon 10 into 18 upon 40. So 8 ones are 8, 5s are 2, 5s are 2, 9s are plus minus 9 upon 25. स्क्वायर रूट निकाल दो. 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5 प्लस माइनस, प्लस के माइनस आएगा, दोनों आंसर प्लस है. सो आंसर प्लस 3 upon 5 मतलब 0.6, मतलब 1 और -1 के बीच में बैठ रहा है क्या. हाँ, दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट. सो तुमने अजम्पशन किया वो करेक्ट है, बराबर है. एक सम लेता हूं जिसमें अजम्पशन थोड़ा रॉन्ग करके बताता हूं. तुम लोग बोलेंगे कि सर को पता है कौन सा इक्वेशन y on x है, तो सर बराबर कर रहे हैं, बट एक सम में मैं उल्टा लेके बताता हूं. बराबर है कि अगर उल्टा आ गया तो फिर कैसे होगा. Here है 0.6. The last part of question number 2 is finding the value of standard deviation of y. Now here in the second part I have got r as 0.6. Now you have got bxy, you have got byx. बोलो bxy कितना मिला ये सम में. फर्स्ट सेकंड पार्ट में देखो bxy कितना मिला 8 upon 40. byx कितना मिला byx 8 upon 10 और bxy 18 upon 40. Okay, so you have got byx, bxy and you have got r. तो bxy byx में से कोई भी एक जो अच्छा लगता है, बोलो तुमको क्या अच्छा लगता है. चलो मुझे byx अच्छा लगता है. byx, formula of byx is r sigma y upon sigma x. So byx के बदले में 8 upon 10 is equal to r के बदले में 0.6. सिग्मा y फाइंड करना है. सिग्मा x क्वेश्चन में दिया है, देखो ना. वेरिएंस ऑफ x is 9, therefore सिग्मा x is 3. स्टैंडर्ड डिविएशन is nothing but square root of the variance. वेरिएंस का स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 3. So 3. Okay, so 8 upon 10 is equal to 6 upon 10 into standard deviation y into 3. Okay, 6 upon 10 कर दिया, तो 8 upon 10 into नीचू ऊंचू नीचू ऊंचू ऊंचू नीचू is equal to standard deviation y. So standard deviation y is equal to 10 gets cancelled, 2 3s are 2 4s are 3 gets cancelled. Answer will be 4. Okay, this is the third part. ये है, कैसे किया देख लो. byx, तुम लोग बोलेंगे सर अगर हम लोग bxy यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा. bxy r सिग्मा x upon सिग्मा y, तो आंसर यही आएगा 4 ही आएगा. चेक कर लो एक बार. ओके